Ria, can you hear me? नहीं सुनने को आता. I Hello, don't know what's happening. good morning, everyone. Dinesh ji, I cannot hear you. You can't hear me? I can hear you now. Yeah. Okay. Mm-hmm. So we have Riyaji also. Yeah, I said hello to her, but she was unable to hear me too. Yeah. Yeah. Hi. Yeah. You know, now I get compulsion to 7:30 to open the iPhone. Yeah. Yeah, you are used to that energy. Yeah, No I'm energy. glad. Yeah. It's a one way my therapy too because I live alone, so I need to talk to somebody, you know. So Yes. But you are never alone. आप that कभी भी way. अकेले नहीं होते हैं, आपके साथ बहुत सारे गाइड्स होते हैं हमेशा. Thank you. Invisible beings always. Yeah. So every person has at least few guides along with them who ensure like Yes. what they are thinking and how to manage the things around you. They're Mm. never alone. Angelic beings are there. Have you heard about the fairy tales? Mhm. Yeah, so Give there me are many. example. Yeah, there are many around you always. Where are the people? Come on. Yeah, 3 more minutes are there. Mm. We'll wait for them to join. Mm. Maybe they are rushing I their know. regular activities so they can join. Yeah. Yeah, it is time to some people work. Yeah, till 7:30, 8 o'clock. Yeah. Yeah, yeah. Mm. So are you applying this wisdom in your life or not? Oh, I have to share the example of that. How does it really work? And I started believing in. Beginning, I started with saying, "Oh, is it really happen? Is really manifestation happen? If you are positive, you think, and you will." And it happened between Dr. Noor and me. I hope she will share better than me that she was very very busy having some conference in her, and I was doing the opening ceremony of oath of my new foundation executive committee, and I asked her to come, and she said, "No, no." I said, I'm going to do the whatever that Dinesh ji has told me, and I'll see whether I testing that, you know." And I said, then if you fail, I'm going to ask Dinesh ji. It didn't work out for me. Then I surprisingly, she came 1:30 there, managing her time, whatever she was impossible to do. And I told her, now you can go. You can go now. Yeah. I just wanted to test the theory, it works or not, you know. Mhm. No, theory Yeah. always works. Theory Mhm. always No, works. it did work. It was impossible because she was the middle of the conference. She Mhm. was the one of the speaker too, that conference. So it was not easy diving area, you know. So Uh, it was impossible for her, and I assumed that. But then I told her, I said, look, let's see. Then surprisingly, she asked me up to what time I can. I said at the worst you can come up to between 1 and 1:30. Before that, even you didn't come, it doesn't matter. mm. And oh my gosh, she was there. Everybody clapped for her, you know. So yeah, Yeah. yeah, I do. I do experience that nowadays. I do. And another thing, don't get disappointed if the like whatever you manifested, it doesn't work. The reason I'll tell you, sometimes we have conflicting beliefs within us. Like this person will never come on time, number one, Mm, and mm, the person should come at 1:30. mm. So there are two conflicting beliefs. Yeah, So what yeah, right. happen? Okay, Yeah. good, good. Explain to me. Yeah, let me see how that analyze. Yeah, so don't worry if little bit delayed, then ki some have somewhere in your mind you have some other belief also that is conflicting with what you manifested. Oh, I see.
Yeah, sometimes many people say, I get $4,000 is enough for me. Mm, And other place they say I should earn maybe a 10,000 or $20,000 per month. mm, Then effectively what will happen? They will get 20,000, but at the end of the day, they can use only 4,000. Rest mm, will go here and there. mm, So manifestation means your beliefs related to that particular area. Good. So mm. you have chosen the today's topic, manifestation. Yeah. Oh, thank you. Yeah. Yeah, क्योंकि Yeah, हमारा in जो fact, यस जो हमारा जो ये होता है ये चैनल होता है एंड वी डोंट डिसाइड द टॉपिक बिफोर राइट टॉपिक mhm, फ्रॉम आवर डिस्कशन और द डिवाइन ओनली डिसाइड आज किस बारे में mhm, बात करना है तो mhm. गुड यू स्टार्टेड Yeah. And we thought both of us would share with you our experience, So, yep yeah I'm glad because this is how the physical reality works. So there is no second thoughts, it won't work. Only thing you might have some other belief also conflicting. Otherwise, or everything happens on divine time. But when meetings and other thing are there, then yes, that is the divine time. mhm. Yeah. You will be surprised whatever you see around Mm. is your manifestation. You manifested some or other time. Oh. So whatever you see is your manifestation. Mm. You Yeah. have chosen everything. So we'll wait for others also to join. And meanwhile, I think we have new guests. So, Riyaji, you want to share your experience or something? Is the first time you're doing meditation? How it is? Feel free to share with us. We are your family. We are one family here. तो कल का सेशन हिंदी में था. यू आर कंफर्टेबल राइट? For me, it was comfortable. Yeah. ओके या क्योंकि क्या Mm. रहा है कि बहुत सारे लोग जो हमारे हैं. No, no, I understand Hindi very well. Yeah. ओके ओके या Mm. तो हिंदी में बात करेंगे तो आई थिंक Yeah. Yeah, yeah. I can speak Hindi too. Yeah. या I used to be in the military, so I used to speak in Hindi, So हाँ या ओके. हाय नीलम. Hello. कैसी हो? Yes, I'm doing good. Thank you. Sorry, I couldn't attend. The weekend is like नो something comes up. प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम. आपको वो रिपीट देखना था इसलिए नहीं अटेंड कर पाए आप. But I saw the repeat and it was so good. हम्म. काफी लोगों की डिमांड आ रही है कि हिंदी में कीजिए. इंग्लिश जो है वो हमें इतना कंफर्टेबल नहीं रहते हैं तो उसको बार बार हमें वो पूरा देखना पड़ता है सबटाइटल्स के साथ. हमने कहा ठीक है अभी जो भी हैं ग्रुप में वो हिंदी समझते हैं तो इट्स ओके. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. yeah, yeah. तो आज का टॉपिक तो ऑलरेडी चूज कर चुकी है मैडम. सेशन. क्या टॉपिक है? मैनिफेस्टेशन. Oh, that's so important. I really want that. I just share my experience with him. You So did? I yeah, missed it. I'm yeah. sure if it's quick, you can reshare. दिनेश जी बताएंगे in spiritual terms. Yeah. Yeah. नहीं स्पिरिचुअल टर्म्स में ये है कि जो असमत जी हैं तो इनका कोई मीटिंग था वो 1:30 पर वो बोले मैं नहीं आ सकती तो इन्हें बोला ठीक है कम बिटवीन 1 to 1:30
एंड वो इम्पॉसिबल था, बट बिकॉज शी सेड ओके आई वांट टू ट्राई दिस, मेरे को ट्राई करना है, ये वर्क होता ही नहीं होता, तो वहाँ पे 130 पे वो वहाँ पे आ चुकी थी, इम्पॉसिबल होने के बाद भी। बट क्या किया, मतलब क्या ट्राई किया? वो तो वही बताएंगे। यस। ट्राई क्या किया, मैं बोली जैसे वो बोलते हैं ना कि यू डोंट हैव टू मेनी कॉफी, आई सेड आई टोल्ड इवन माय हेड that she will come because I know that I'm asking her to come and she will come. He said but बोलती है वो नहीं आएगी, उसकी बड़ी मीटिंग है, वो प्रेसिडेंट है उधर उधर, वो बड़ा बड़ा लेक्चर देती है। I said if she doesn't come and I'm really honestly manifesting, visualizing and everything, and if it doesn't work, then I'm going to ask Dinesh ji, it didn't work for me and why, you know. बिल्कुल But it बिल्कुल। did work. And she herself said, you tested, Aparna, and I'm here. सी टोटली। और फिर उनके लिए आई सबने क्लेप या भी किया। एक्चुअली नो उनके आई लिए थिंक सबने क्लेप किया कि वो टाइम पे आ गई। और Yeah, एक्चुअली अपर्णा everybody जी के clap, लिए yeah. भी, अपर्णा जी के लिए भी होना चाहिए ना क्लेप। Yeah, yeah, thank उन्होंने you. उन्होंने कुछ तो लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। Yeah. या मैनिफेस्टेशन बहुत सीखना है, बहुत काम आता है, मतलब But बहुत सही होता है। yeah, but मुझे एक डाउट आता है, हम जैसे बिगिनर होते हैं ना, जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं लिया और 100% ट्रस्ट नहीं करते, अभी भी डाउट करते, ये रियलिटी है कि सच्ची है क्या, ऐसा होता है, हाउ डू यू क्लियर दैट माइंड? नहीं देखो, वो एक प्रोसेस होता है। वो एक ये प्रोसेस वो होता है कि जो आपने एक बार सीखा है उस पर बिलीव करने लगे हैं, फिर उसको अनसीखा, मतलब उसको रिवर्स में जाते हैं, उसको डिलीट करते हैं, तो उसमें भी उतना ही टाइम लगता है। तो वो एक प्रोसेस है। तो कोई भी चीज़ नई सीखने में भी स्टेप होती है, उसको हटाने भी स्टेप होती है, तो इन बिटवीन का जो है ट्रांजिशन पीरियड होता है। तो आपको अगर जैसे आपने बोला ना, नहीं 100% शी कम्स, बस वहां पे वो सारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं। आप बोलोगे मुझे नहीं पता, देन यू डोंट नो। आपने कह दिया मुझे पता है, तुरंत आपके एयरसेल ऊपर से सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में डाल देंगे। और आप बोलोगे मुझे नहीं पता, जो है वो भी हटा देंगे। कई बार आप कहते हो बस ना, मुझे वो सॉन्ग की लिरिक्स याद नहीं आ रही है, कोई तो सॉन्ग था, कोई तो मैं भूल गई। एयरसेल फिर पूरा ही हटा देते हैं उसको। फिर उसके बाद में कोई रिमाइंड करवाता है, फिर कहते हैं हाँ यही वाला था, फटाक से पूरा याद आ जाता है, क्योंकि मेमोरी इज कंट्रोल्ड बाय योर हायर सेल्फ। साइंटिस्ट so ढूंढ। this therapy should work for the Alzheimer people who lose their mind. या बिकॉज दे आर टीचिंग अदर्स, Mm. दे आर टीचिंग, वो पेरेंट्स के लिए लेसन होता है। Mhm. इट हैपेंड विद मी, आई बॉट अ न्यू इंस्ट्रूमेंट बेंजो। तो मैं उसके लिए सोच रहा था कि इफ आई कैन गेट फॉर लेग्स ऑफ वन टेबल, सो आई कैन यूज इट फॉर माई बेंजो। लेकिन डिवाइन को कुछ और चाहिए था, डिवाइन चाहते थे कि मैं उसके लिए एक कुछ और करूं। तो मैंने काफ़ी ढूंढा, नहीं मिला। फिर फाइनली आई ऑर्डर द बेंजो स्टैंड, जो होता है ना कीबोर्ड टाइप का। आई Mhm. ऑर्डर्ड इट। जैसे ऑर्डर किया वो लेग्स दिख गए। Mhm. तो जब तक वो ऑर्डर नहीं किया वो लेग्स नहीं दिख रहे थे। तभी हमारे घर पे बहुत कॉमन है, अच्छा ये नहीं मिल रहा है, मे बी सम अदर ऑप्शन इज देयर। तो फिर हम अदर ऑप्शन के ऊपर जाते हैं। बिल्कुल। और अगर अदर ऑप्शन होने के जस्ट पहले अगर अपेयर हो गया, तो हम समझते थे हमारा कोई टेस्ट था ये। तो ये करेक्ट। लाइफ में होता ही है। तो हमारे यहाँ कोई चीज़ नहीं मिल रही तो ये बोलते हैं कि ठीक है, मैं भी अभी इसका कुछ रोल नहीं है, या रीजन। ऑप्शन एक्सप्लोर करना है। एंड दैट इज हाउ वी लर्न न्यू थिंग्स, राइट। अगर आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ है और उसी को यूज़ कर रहे हो, तो न्यू जो चीज़ आपकी लाइफ में एंटर होना है उसको कैसे करोगे आप? इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद 3 और 4 पीपल इन योर फैमिली, और आपकी लाइफ में फिर आप फिफ्थ को तो एंटर ही नहीं होने दोगे, बिकॉज यू आर Mhm. सफिशियंट, सेल्फ सफिशियंट हो आप। तो इसलिए क्या करते हैं, कुछ एक खटपट होती है, वो अलग होता है, देन यू मिस लाइक समथिंग, ओ इट्स नॉट देयर, फिर न्यू की एंट्री आप दे देते हैं। तो समटाइम इट हैपन्स, देन ओल्ड भी आ जाता है वो। तो दिस ऑल ड्रामा, अगर आपने इसको ड्रामा मान लिया ना, देन यू विल एंजॉय मोर। अगर आप सीरियसली ले लेंगे ना, ओ माय गुडनेस दिस इज हैपनिंग विद मी, व्हाई इज हैपनिंग विद मी, फिर वो पूरा ड्रामा आप नहीं समझो, यू आर इन्वॉल्व इन द ड्रामा।
देन यू एक्ट एज अ विक्टिम। बट जब बाहर से ऐसे देखोगे ना, ऊपर से, अच्छा ये हो रहा है, ओके लेट्स सी क्या होता है, तो यू प्ले विद द माया, यू प्ले विद द दैट इल्यूजन्स, राइट। फिर आप और एंजॉय करोगे लाइफ को। जैसे कोई चीज नहीं मिलती, हमें बोला ओके नहीं मिल रही है, ओके देखते हैं देखते हैं क्या प्लान है। तो हम रिवील होने का वेट करते हैं वो प्लान को, और तब तक होते हैं कि ओके विल सी, तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर हमें ये भी समझ में आ जाता है ये काम अभी नहीं होना है, इसीलिए वी आर नॉट एबल टू फाइंड दिस। और सीरियसली वही होता है। इट हैपन विद मी। मदर का लाइफ इंश्योरेंस, वो लाइफ सर्टिफिकेट बनाना रहता था। मदर इज लाइक वरीड, ओ आई टू गो, आई टू गो, आई टू गो देयर एंड थिंक दिस विल हैपन, दैट विल। आई सेड मम्मा वेट 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 वेट, अंदर से आने दो all of a sudden in my community one guy sent a message, if anybody wants to get it done, life certificate, come to my house, just like 2 3 houses next। हम वहाँ गए, फटाक से 5 मिनट्स में काम किया, घर पे वापस। मतलब सी कितना इजी प्लान किया था डिवाइन ने। नहीं तो मदर वहां जाएंगे, उधर जाएंगे, ये जाएंगे, उनका होल्ड ऑन अंदर से आने दो तो जब तक अंदर से नहीं आ जाए ना, वो अंदर से आ जाना चाहिए कि यस अभी टाइम आ गया है, then you will see things happening very quick or fast। So we have Prerna ji also, Poonam ji। Okay, so सब सब हिंदी के साथ कंफर्टेबल है ना? बिल्कुल। Okay, so manifestation। So rule number one, wisdom number one, whatever you see around and in this lifetime you already manifested, and whatever you see things are happening, these are all manifested things। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है आपके लाइफ में जो आपने मैनिफेस्ट नहीं किया और आपकी रियलिटी में अपीयर हो रहा है, बिकॉज वी ऑल आर सुपर डुपर ब्रिलियंट मैनिफेस्टर। क्लियर? हाँ। ओके, नाउ सेकंड विजडम इज व्हाट ऑल आई कैन मैनिफेस्ट। तो मैनिफेस्टेशन you can do only in the scope of what you are going to experience on earth and with the timeline। से फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं कि मैं मैनिफेस्ट करती हूँ मेरी थर्ड आई ओपन हो जाए, आई कैन सी द विजुअल्स। नाउ द थिंग इज दैट वेदर आर यू सपोज टू यूज द योर थर्ड आई, द विजुअल्स एंड अदर थिंग, सी समवन्स पास्ट लाइफ एंड अदर थिंग इन दिस बर्थ टाइम। इफ नॉट, then you will never get the third eye there, but you will get, because you already manifested other psychic power। तो टाइम आने के ऊपर दूसरी, इट मे बी हैंड राइटिंग, लाइक वट एवर यू राइट दैट हैपन्स, और वट एवर यू राइट दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। और इट कैन बी एनी अदर थिंग, यू कैन हियर, क्लियर ऑडियंस हो सकता है आपका, क्लियर दूसरा हो सकता है, वॉइस हो सकता है। तो अलग अलग आपका जो है देखने का हो सकता है, कोग्निजेंस हो सकता है, सेंटियंस हो सकता है, तो ओडियंट हो सकता है, क्लियर। तो बहुत सारी पावर होती है। देर इज लाइक इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव साइकिक पावर्स। तो जितना भी आप लोग, हर इंसान है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। सो वन सिंपल कैलकुलेशन, अगर हर इंसान यूनिक है, दैट मीन्स ही हैज वन साइकिक पावर, करेक्ट। तो इतनी साइकिक पावर हो सकती है, बट व्हाट हैपन, जनरली वी सी ओ दिस पर्सन इज हैविंग दिस पावर, आई शुड आल्सो गेट इट। देन व्हाट अबाउट योर ओन साइकिक पावर, जो साइकिक पावर आपके पास ऑलरेडी, जो आपकी ब्लूप्रिंट है, और वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, बिकॉज इज अ यूनिक। तो इसका मतलब ये हो गया है कि वो साइकिक पावर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप थर्ड आई के लिए मतलब उस चीज़ के लिए ओपन पूरा मेडिटेशन करेंगे और जो भी ट्राई करेंगे, फाइनली रीच टू योर ओन यूनिक, जो भी आपका साइकिक पावर है।
and slowly you will come to know, okay, मेरा psychic power. So don't compare with others. तो वहां पर मैनिफेस्टेशन आप करेंगे एक चीज, लेकिन जो आपका है वो मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे मैनिफेस्ट करूं कि आई शुड बी ऑन द मार्स। तो इफ यू आर नॉट सपोज टू बी ऑन मार्स इन दिस लाइफ टाइम, आप नहीं जाते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन कम, डू आई रियली नीड टू मैनिफेस्ट? यस, यू कैन मैनिफेस्ट इट, लेकिन वो जो ऑप्शन है इस लाइफ टाइम का, उसी में से आपको मिलता है। इट्स नॉट लाइक जैसे केबीसी के ऑप्शंस होते हैं ना, यू कैन चूज बिटवीन ए बी सी डी। ऐसा नहीं है कि आई वांट ई, ई वोंट कम। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। मैनिफेस्टेशन में ये होता है कि आप, ओके, सपोज आपकी लाइफ का फ्लो ए बी सी डी होता है, तो आपके हायर सेल ने ऑलरेडी मैनिफेस्ट किया हुआ है, आपने ऑलरेडी मैनिफेस्ट किया है, वो ऑलरेडी हो रही है। तो व्हाट इज द बेस्ट मैनिफेस्टेशन? द बेस्ट मैनिफेस्टेशन गो विद द फ्लो, क्योंकि हायर सेल को पता है व्हाट इज नेक्स्ट द बेस्ट थिंग यू हैव टू डू। तो इफ यू गो विद द फ्लो, वो मैनिफेस्टेशन में ऑलरेडी आता जा रहा है वो। तो कीप एंजॉइंग वॉट एवर यू आर गेटिंग, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ एंड यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट इफ यू गो विद द फ्लो। लेकिन आप बोलते हो नहीं मुझे तो मैनिफेस्ट करना है, देन यू हैव लॉट ऑफ वेटिंग पीरियड इन बिटवीन। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है, द मोमेंट यू मैनिफेस्ट देन यू से ओके लेट्स वेट, और स्टिल नॉट कमिंग, स्टिल नॉट कमिंग, स्टिल नॉट कमिंग। तो वेट इज आल्सो मैनिफेस्टेशन। तो बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं, इफ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, दैट इज आल्सो मैनिफेस्टेशन। इफ यू से इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स नॉट हैपनिंग, दैट इज आल्सो गेट मैनिफेस्टेड, बिकॉज यू आर सपोज टू हैव दैट काइंड ऑफ थिंग, वो रियलिटी में होता है आपका, तो फिर चीजें थोड़ा डिले होता है। जैसे कोई चीज आपको कल मिलना है, आप बोलेगा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कल नहीं होगा वो, फिर वो किसी और दिन के लिए पोस्टपोन्ड हो जाएगा। तो मैनिफेस्टेशन करने के बाद सरेंडर इज इम्पोर्टेंट। तो आप बोलेंगे फिर मैनिफेस्टेशन करना है या नहीं करना है? तो आप गो विद द फ्लो भी नहीं करते हैं, मैनिफेस्टेशन भी नहीं करते हैं, तो फिर आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि हाउ द वॉट एवर यू थिंक दैट इज हैपनिंग, हाउ इट वर्क्स। तो अगर आपको वो एक्सपीरियंस लेना है तो यू हैव टू ट्राई मैनिफेस्टेशन, बट व्हेन इट इज नॉट हैपनिंग राइट अवे, जस्ट थिंक योर सम बिलीव्स इन बिटवीन, वो हटाने के लिए ये इवेंट हो रही है। तो बिलीफ को फिगर आउट करो। लाइक अपर्णा जी का केस हमने डिस्कस किया था कि उन्होंने बोला कि 1:30 पे डॉक्टर नूर हैज टू कम, शी विल कम। नाउ व्हाट हैपेंस? Dr. Noor, tell him. या शी इज देयर या। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी ने ये, सॉरी मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, शी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, ओके। तो हो सकता है आपका बिलीफ हो कि डॉक्टर नूर ऑलवेज 5 मिनट्स लेट ही आती हैं। तो आपके दो बिलीफ हो गए, 1:30 पे आते हैं, 5 मिनट्स लेट आते हैं, तो कितनी बजे आना चाहिए उनको? Conflict हुआ तो भी Can I say it? हाँ या Actually, what happened was, hear me? Yes, this is Dr. No. No, I was not supposed to go that Go, day. yeah. Are you talking about yesterday? Yeah. Aparna ji? I Yes, was yes. telling him Yes. that you said I will never come, no time, I'm busy and all that. And I told I want to test my manifestation of timing. I gave you come between 1 and 1:30. And it was impossible for her to come because it was far and the time was very crunch. But we saw you and it worked out. That's what I was shared with him. Yeah. Yeah, from my point of view, I had another seminar, but she called with so much connection and so much passion and love. I felt, okay, my lunchtime, I'm just going to go show them face. And I drove all the way to their place and she was very happy. So yes, of course, she manifested it. But from my point of view, she called me with so much love and compassion. I felt, you know what, I cannot say no, let me go there. So I did it. So you know the both the Thank parts. you. Okay, very good example लाइव जो अभी हुआ है कि एक ने मैनिफेस्ट किया है और एक का आने का प्लान नहीं है। ऑल अ सडन उनको लव कंपेशन सब कुछ फील हो रहा है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं। And the driving was so long distance, it was not easy. यस,
तो आपको पता है कि आपका मैनिफेस्टेशन किस Yeah. तरह से काम करता है, कैसे चीजें या इंसान मूव होना शुरू होता है उधर। तो आप बोलेंगे ना नहीं ये इम्पॉसिबल है, पहले तो उस बिलीफ को हटा दो। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। नहीं, इम्पॉसिबल। ऐसी मेरी हिडन जजमेंट बोलो या कुछ भी, डॉक्टर नूर की वो हमेशा बिजी होती है, वो आती नहीं है, कि वो हमेशा बिजी होती है। तो मुझे लगा एक टाइम पर तो ऐसे ही बोलेगी मुझे नहीं आती हूँ। बट व्हेन आई सेड नो, आई गॉट टू टेस्ट दिस एंड इज गोइंग टू वर्क, अदर इफ डजंट वर्क आई एम टू कॉल दिनेश जी एंड आस्क हिम हाउ डू आई implement this, that's what it example of that. I ओके। know, Right? but she made a call. You made a call. You Yeah, made a call with so much compassion and love. I felt, yeah. oh my God, how can I say no? No, that's not good. Okay. So I made it happen during my lunchtime. I drove all the way Yeah, yeah. Now because I here, felt the energy. yes, here you have to understand one thing. Aparna ji has taken action here, right? In that direction. Yes. So that is another wisdom, part of it manifestation. कि सबसे पहले कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हो तो सबसे पहले तो आप जो चीज करना है वो है, सबसे पहले तो आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है कि आज तक आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो पूरी होती है। नंबर वन। सेकंड थिंग, मैनिफेस्ट वो करो जो आपको दिमाग अलाउ करे कि यस ये नहीं होता था और ये हो जाता है। मतलब शॉर्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत लॉन्ग कर दिया आपने। सेकंड ये, दूसरा चीज है सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करो जो भी आपको मिला है, कि थैंक्स गॉड आई मैनिफेस्टेड एंड यू गिव मी, ताकि आपके हर सेल को मालूम पड़े कि आपको अच्छा लग रहा है कोई चीज मैनिफेस्ट हो रही है। तो वो बोलेगा ओके, आई लव यू टू डू मोर मैनिफेस्टेशन। नंबर वन। नंबर टू, पहले एक्सेप्ट करो कि यस अभी ये नहीं हो रहा है। पहले एक्नॉलेज करो कि यस आई एम रिसीविंग इट। सेकेंडली उसको एक्सेप्ट करो कि यस मेरे मेरे साथ ये नहीं हो रहा है अभी तक। जो एग्जाम्पल सेम कंटिन्यू करते हैं, जैसे डॉक्टर नूर हैं, वो हमेशा बिजी रहती हैं। अब मेरा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वो बिजी रहती है, उनको आना है। अब आपको पता है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, तो एक बिलीफ को जाना है, करेक्ट? या तो मुझे ये मैनिफेस्टेशन छोड़ देना है, वो आना है, या बिजी है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स आ गए। तो यू कैन नॉट हैव बोथ द थिंग। तो आपको पहले दिमाग को बोलना है ओनली वन। क्या चूज करोगे? वो आएगी। बात आएगी, और उनके पास इनफ टाइम है, इस बिलीफ को डालिए। या जब भी मैं कॉल करती हूँ शी ऑलवेज कम्स, ये बिलीफ वहां पे ज्यादा अच्छा रहेगा आपको रखना। तो वो बिलीफ को हटा दीजिए आप। फिर इस बिलीफ को आप एनर्जी देना शुरू कीजिए। आती है, फिर क्या होगा, टेस्ट होंगे। आप बोलेंगे वो आती है, समवन विल कम, वो तो कभी नहीं आती, वो तो बिजी रहती है, वो आपने ही कहा हुआ है उन लोगों को। तो वो लोग आके आपके बोलेंगे नहीं वो नहीं आती है, वो नहीं आती है। आपको हमेशा वही करना है, आती है आती है आती है, वो कोई कुछ भी बोले, बट यू हैव टू से द सेम थिंग। मन में भी वही, मुंह पे भी वही, और एक्शन भी उस हिसाब से लेना है। डोंट वरी, आई एम मेकिंग डिशेस फॉर हर, और आई ऑलरेडी अरेंज थिंग्स फॉर हर, तो शी हैज टू कम। तो आप ऑलरेडी एक्शन ले चुके हो, देन यू टेक अ एक्शन इन अ फिजिकल वर्ल्ड। तो एक तो हो गया, दिमाग से सोचना है जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड व्हेन यू मैनिफेस्ट, विजुअलाइज इट। अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो मीन्स इट एग्जिस्ट फॉर यू। अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो मीन्स यू कैन नॉट, इट डजंट एग्जिस्ट फॉर यू। बिकॉज विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन कम्स फ्रॉम योर हायर माइंड, इट विल नेवर कम फ्रॉम योर फिजिकल माइंड। तो अगर आपने किसी चीज को विजुअलाइज कर लिया है कि डॉक्टर नूर ऑलरेडी देयर, आपने विजुअलाइज कर लिया है और आपको विजुअलाइज हो चुका है, बिलीव भी हो चुका है कि यस आई एम एबल टू इमेजिन दैट, तो समझ लो वो पॉसिबिलिटी है आपके लिए, एंड यू कैन मैनिफेस्ट इट, इज गोइंग टू वर्क। और अगर विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहे हो आप, और कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही है और स्टार्ट करते हो आगे नहीं जा पा रहा है, तो समझ लीजिए कि इधर डिवाइन टाइम हैज नॉट कम, और फॉर नाउ यू कैन नॉट मैनिफेस्ट इट। तो ऐसा मत समझिए कि ओ इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, नो नो, डोंट वरी।
हो सकता है अभी के लिए प्लान नहीं है, आगे के लिए आपके हायर सेल्फ ने प्लान किया है। तो मैनिफेस्टेशन करते हो तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ विल डू वन मेडिटेशन, जहां पर एक टेक्निक को हम इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं कि हाउ टू विजुअलाइज, हाउ यू कैन विजुअलाइज। तो सबसे पहला मैनिफेस्टेशन में जितने भी बिलीफ्स है वो एक एक करके निकल के आएंगे। आज तक मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हुआ, अब आप कुछ अच्छा हो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए, और आपने ऑलरेडी एक बिलीफ है मेरे साथ आज तक अच्छा नहीं होता, तो क्या होगा? वो नहीं होता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ है। आज तक मेरी जिंदगी में ऐसा न हुआ है न होता है, डन, नहीं होता है। तो इतने जितने भी कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स है ना, उनको भी आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज आप जनरल एक बोलते हैं ना, वाइप अप कर सकते हो कि अगर इससे रिलेटेड जाने अनजाने में अगर मैंने कोई भी ऐसे बिलीफ्स लिए हैं कि ये चीज को नहीं होना, इससे रिलेटेड कोई भी बिलीफ है, तो पहले मैं उन सबको रिलीज करता हूँ। जस्ट गिव लाइक बोलते ना, एक एयर में ऐसे ही देख लो, अगर हिट किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक। तो वो आपको करते रहना, ये होता है। और जो भी बिलीफ्स हैं वो मैं उनको रिलीज करती हूँ, और ये होता है। जो भी बिलीफ्स हैं जो इसके बीच में आ सकते हैं उनको ये करती हूँ, और ये होता है। तो वो चीज आपको पहले बोलना है कि तो आपकी हायर सेल्फ समझ लेगी हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर यू। फिर हायर सेल्फ विल देन सरेंडर इट टू द हायर सेल्फ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बोलेगी मेरे को से कैलिफोर्निया से इंडिया जाना है, और आप बोले नेक्स्ट मोमेंट में वहां पर होना चाहिए। तो आपको भी पता है कि टाइम लगता है, तो हायर सेल्फ विल शेड्यूल इट। तो उसके बाद सरेंडर कर दीजिए। एंड कोई बोले कि इंडिया आ रहे हो, हाँ आता हूँ, आती हूँ मैं इंडिया। इंडिया आ रहे हो, यस आता हूं। बस एक ही बात बोलना है, डोंट यूज द वर्ड होगा, आएगा, देखते हैं, बिकॉज देखते हैं इज ऑल्सो वेटिंग। एक तो होता है, डोंट वरी होता है। एक होता है कि देखते हैं, तो इट मीन्स स्टिल यू आर इन अ डायलेमा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी विजुअलाइजेशन आप जब भी करते हो, तो यू ऑलवेज सी थिंग्स इज हैपनिंग। से फॉर एग्जांपल यू वांट टू बाई ए रेड कलर कार, जस्ट इमेजिन। तो आपको देखना है कि यू कमिंग, यू आर सिटिंग इन अ रेड कार, यू आर होल्डिंग द की। वो सारा विजुलाइज करना है आपको। तो विजुलाइज कैसे करना है? सो जनरली व्हेन यू विजुलाइज, फर्स्ट मेक अ लव एंड लाइट का हार्ट विजुलाइज कीजिए पहले, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर ज्यादा अच्छा ड्रॉ होता है, राइट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन अ वॉइड और सम ब्लैक और समथिंग। तो सबसे पहले तो एक वाइट बोर्ड आप विजुलाइज कीजिए, दैट इज फिल्ड विद लव एंड लाइट। And if you see any gray color in it, that is your limiting belief. उनको एक बार टेक एनी डस्टर और एनीथिंग एंड वाइप वाइट, उसको पूरा कर दीजिए आप। वहां कुछ भी नहीं रहना चाहिए। दैट मीन्स यू हैव रिमूव्ड ऑल द बिलीव्स, ग्रे एनर्जी, डाउट एनर्जी फ्रॉम देयर। नाउ ऑन टॉप ऑफ दैट हार्ट शेप जो आपने बनाया ना, उसके ऊपर देन यू स्टार्ट इम्पोजिंग द वट एवर यू नीड ना, रेड कलर कार, वो आप चल रहे हैं और आप आगे जा रहे हैं। सो स्लोली आप उसको, चाहिए तो आप रियल लाइफ में भी ला सकते हैं। आप रोड पे चल रहे हैं बाद में, उसको विजुलाइज कीजिए और यू आर एंजॉइंग इट। मोर इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं कि मेरे को कार चाहिए, मुझे उस फ्रेंड के साथ मिलना है, और फ्रेंड के साथ मिलोगे तो एक्साइटमेंट है ना, वो एक्साइटमेंट अभी दिखाना है विजुअलाइजेशन के टाइम पे। तो अगर आपको कार मिल चुकी है रेड कलर की, तो आप ड्राइव करके ये आई गॉट माई रेड कार, तो वो एक्साइटमेंट भी दिखाते रहना है विजुअलाइजेशन में। तो उस वाइब्रेशन में आप आ जाते हो जहां पर आप रेड कार में बैठे हो और बहुत एक्साइटेड हो। फिर यहाँ पर जो आपकी रियलिटी में जहां पर भी वो रेड कार, वो एक्साइटमेंट है, वो मैच होता है, और फिर वो डिवाइन टाइम पे आपकी रियलिटी में अपेयर होता है। तो दिस इज हाउ द मैनिफेस्टेशन वर्क। लाइक अपर्णा जी के केस में उन्होंने मैनिफेस्ट किया कि डॉक्टर नूर आएगी। उन्होंने एक्शन भी लेना है, एक्शन भी लेना है। ऐसा नहीं कि मैं तो कार ही बुक नहीं कर रही हूँ, कार आ जाती है, ऐसा नहीं होगा। यू टू टेक अ फिजिकल एक्शन। तो आपको ये नहीं करना है कि मुझे तो रेड कलर कार चाहिए और मैं बोल रही हूँ कि नहीं मुझे तो कार ही नहीं लेना, मेरे को तो ट्रक लेना है।
तो आप यहाँ पे खुद ही कॉन्फ्लिक्टिंग मोड में हो भी। तो अगर आपने सोच लिया है कि आई नीड अ रेड कलर कार, देन यू नीड अ रेड कलर कार ओनली। क्लियर? Yeah, very clear. यस। तो कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स बहुत सारे होते हैं हमारे, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक हमें माइंड को ट्रेन किया जाता है, ये तो नहीं होता, तेरे साथ तो पक्का नहीं होता, तेरे साथ तो पक्का, तू तो ऐसा है, तू तो ऐसी है। वो सारी चीजों को, ये अपॉर्चुनिटी उनको हटाने की एक्चुअली। आप तो सोचोगे कि क्या करेंगे, बट दैट इज अपॉर्चुनिटी। तो आपके हर सेल भी देखते हैं और कौन से बिलीफ हैं। तो जब आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, तो वो सारे बिलीफ को क्लीन करवाते हैं फिर आपसे। फॉर यू, यू नीड समथिंग, फॉर हायर सेल्फ इज अपॉर्चुनिटी। पूरा पॉपअप करेंगे सारे बिलीफ्स वन बाय वन। और आप बोल दोगे, जैसे आपने बोल दिया कि इंश्योरेंस से कार खरीदना है या वो करना है या आपको लोन लेना है या जो भी है, आप मतलब लोन लेके खरीदना है, आप बोल दो मुझे तो लोन देता ही नहीं कोई बैंक। अब कोई बैंक लोन नहीं देता है, लोन से खरीदना है, कैसे पॉसिबल है? तो वन थिंग यू हैव टू चूज दिस और दैट। तो वहां पे भी कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं, तो वो सारे बिलीफ्स को आप हटाते जाएंगे एंड देन फाइनली यू हैव, फिर डिवाइन टाइम आता है एंड दैट थिंग अपीयर्स इन योर लाइफ ऑल अ सडन। और जिस दिन डिवाइन टाइम आता है ना, यू विल बी सरप्राइज। पहले लोन देने वाला आता है सामने अगर आपको लोन से ले मैनिफेस्ट किया है, फिर उसके बाद आप जाते हो और कोई आपको कहता है ब्लू कार ले ले, येलो ले ले, ये ले ले, वाइट ले ले। आप कहते हैं नहीं, रेड कलर ओनली। फिर वहाँ पे शोरूम पे नहीं मिलती है। फिर आप कहते ओ माई गुडनेस, आई शुड टेक मे बी येलो और सम अदर कलर। और ऑल अ सडन फ्रेंड बोलता है, कॉल आता है वहां से, हे वो शोरूम के अंदर एक रेड कलर का कार है। एंड यू गो देयर एंड यू गेट योर द रेड कलर कार। और फिर आप देखोगे जो आपने विजुलाइज किया, जो एक्साइटमेंट है, वो एक्साइटमेंट आपका यहाँ पे भी मैच हो रहा है। तो वो चीज आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, वो एक्साइटमेंट आपको विजुलाइजेशन में ही दिखा देना है। क्लियर? Yeah. And from your mind, what you say and what you do, all should be aligned to your manifestation. मुझे मेरा प्यार मिल जाए, और बोले मेरी जिंदगी में तो कोई आ ही नहीं सकता, और आई एम लाइक दैट, पहले भी हुआ था, ऐसा हो गया है। तो फिर आपको वो पूरे बिलीफ्स को भी हटाना है पहले। बहुत सारे बिलीफ्स होते हैं जो आपको, नहीं मेरे को तो मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को तो वो चाहिए। तो कभी भी मैनिफेस्टेशन में डोंट इंसिस्ट, इस तरह से ही होना है। अब मुझे एक बात पता है, रेड कलर आपने लोन से बोला, आपके हायर सेल्फ चाहते हैं आप लोन ना लें, आपको कोई दिक्कत है क्या? तो डोंट इंसिस्ट आई शुड गेट द लोन। व्हाई यू शुड गेट द लोन? लेट योर हायर सेल्फ डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू टेक लोन और यू कैन बाई ऑन योर ओन। लेकिन अभी करंट आपकी फाइनेंशियल स्टेज बोलती है कि नहीं, मे बी आई नीड अ लोन। तो लीव इट ऑन अ हायर सेल्फ, डोंट इंसिस्ट इट शुड हैपन दिस वे। नहीं हो रहा है, फिर कोई आके बोल रहा है, आपका फ्रेंड आके बोल रहा है, अरे नहीं नहीं तू तो डायरेक्ट कार को ले ले। तो आप उसको रजिस्ट कर रहे हो कि नहीं नहीं लोन से ही आना है। तो उसको रजिस्ट भी नहीं करना है, इंसिस्ट भी नहीं करना है कि इसी तरह से होना है। हाउ, व्हेन, वेयर, ये चीज कभी भी आपको मैनिफेस्टेशन में नहीं डालना है। लेट योर हायर सेल्फ डिसाइड व्हाट इज द बेस्ट वे। तो इफ योर हायर सेल्फ, because who is the creator of the thing? You and your higher self, right? तो आपको ये बोलना है हायर सेल्फ रेड कलर का, और यू आर एंजॉइंग इट इंस्टेड ऑफ, ठीक है आप अगर आपको लगता है प्रोसेस होना है तो यू कैन डू इट, बट प्रोसेस मे और मे नॉट हैपन, बिकॉज हायर सेल्फ ऑलवेज गिव यू द बेस्ट। सो डोंट डोंट इंसिस्ट, और ऐसे ही होना है, इस पर्सन को ही मेरे घर पे आना है और फिर मुझे दे के जाना है, ऐसा नहीं बोलो। आप बोलो मेरे को ये चीज मिल जाती है, वो पर्सन लेके आए या कोई दूसरा लेके आए, हर सेल्फ डिसाइड करेंगे कौन सा बेस्ट वे है। तो डोंट इंसिस्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं लगाना है कि नहीं 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 ये तो नहीं, मेरे को तो नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। क्या पता वहीं से रास्ता होता है, निकला होता है।
और आई हैव सीन मेनी एग्जाम्पल जहां पर कि मेरे को अल्टरनेट मिलते हैं और मैं बोलता हूँ ओके, और इसके पहले कि वो ओके हो आगे बढ़े, अल्टरनेट मेरे सामने भी आ जाता है। वो जो भी नहीं मतलब जो भी मैंने मैनिफेस्ट किया वही फाइनली अपीयर हो जाता है। क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि हो सकता है मेरे हायर सेल्फ अल्टरनेट के चक्कर में मुझे इस जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, और किसी ने मुझे बोल दिया कि आपको वहां जाना पड़ेगा इस कार के लिए, तो यस, ऑल ए सडन हायर सेल्फ प्लान करेंगे, कोई फ्रेंड आएगा कार लेके आएगा मुझे वहां लेके जाएगा, आई शुड गो एंड सी देयर, क्योंकि ऐसे लोग आपको उस जगह पे ले जा रहे हैं जहाँ आपको चीज मिलने वाली है। सो दैट आल्सो, वो चीज जहां पर अवेलेबल है, आपके हाई सेल्फ गो विद द फ्लो में, ये सबसे बड़ा फायदा होता है। कि कोई चीज मान लो कैलिफोर्निया से नहीं होके और डबलिन में या कहीं दूसरी जगह पे है, तो ऑल ए सडन आपका प्लान चेंज किया जाएगा वहां पे। कोई ना कोई फ्रेंड आएगा आपको लेके जाएगा और आप देखोगे ओह हियर इट इज, ऑल ए सडन यू विल सी दैट थिंग। और फिर आप देख रहे हो एक के बाद एक चीज बहुत फास्ट हो रही है, हर चीज आपको मिलती जा रही है, एंड यू विल बी सरप्राइज यू ओन द कार देयर। क्लियर? तो डोंट insist or resist because the method may be changed by yourself. Always focus on what you are thinking. Now the next बहुत important है, you can only manifest your need, not the want. क्योंकि हायर सेल्फ का प्रॉमिस है वॉट एवर यू नीड विल बी गिवन, वॉट एवर यू वॉन्ट मे बी कमिंग फ्रॉम योर, मे बी किसी को अच्छा दिखाना है या ऐसा करना है, तो whatever you need you will get in a manifestation, not whatever you want. तो वांट में क्या होता है, it should happen this way, और I should get like I should buy हेलीकॉप्टर। आप बोलोगे मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, अब आप जिस जगह पे रह रहे हो हेलीकॉप्टर नहीं चल सकता है, तो यू इस योर वांट इज नॉट योर नीड। और मे बी आपका ऑफिस जो नेक्स्ट वहाँ पे, और आप जस्ट रिलेटिव्स को दिखाना चाहते हो यस आई आई ओन हेलीकॉप्टर, मेरे पास हेलीकॉप्टर है ये है, तो वहां पे ईगो आ रहा है, तो हेड सेल्फ उसको वांट को सपोर्ट नहीं करते। सो बेसिकली यू शुड आल्सो, व्हेन यू मैनिफेस्ट यू शुड आल्सो सी वेदर यू नीड इट और नॉट। अभी मैं बोल दूं कि मेरे पास 10 कार्स होना चाहिए, डू आई रियली नीड 10 कार्स? नो। बट यस आई माइट हैव कि आई हैव 10 हाउसेस and every house one car has to be there, because I don't prefer traveling from one house to other house because very far, maybe I have to take the flight, then yes it's your need। तो वहां पे हरसेल्फ आपका सोच सकते हैं कि यस आपके कुछ बिलीफ्स हैं, तो दिस इज द बेस्ट वन। सो नीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वेदर डू यू हैव द स्पेस टू कीप दोज 10 कार्स। तो जो आपकी वांट कभी भी हायर सेल्फ पूरा नहीं करते हैं, नीड करते हैं, आपकी नीड होना चाहिए। सो यू हैव टू इंस्टेट व्हाई यू नीड इट। लाइक आई एम ट्रेवलिंग डेली एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज हायर सेल्फ को सिर्फ आपको कार ही नहीं देना है, कार के साथ फ्यूल का भी, गैस का भी आपको अरेंज करना है। तो हायर सेल्फ विल नेवर यू नो वट एवर यू मैनिफेस्ट नेवर गिव वन। अगर आपको अच्छा, अगर आपने प्लान किया है तो उसके लिए फिर उनको मनी फ्लो भी करना पड़ेगा, चीज़ें भी अरेंज करना पड़ेगा, एंड थिंग्स स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स यू, इसलिए थोड़ा टाइम रहता है। तो डोंट वेट ओ व्हेन इट विल हैपन, ओ व्हेन इट विल हैपन, ओ व्हेन इट विल हैपन। सो इफ यू मैनिफेस्ट व्हेन इट विल हैपन, दैट इज ऑलरेडी मैनिफेस्टेड फॉर यू फ्रॉम द डे वन, तो तुरंत आपके अपेयर हो जाएगा और चीज़ें डिले होना शुरू हो जाएगा। सो डोंट डोंट से कब होगा कब होगा कब होगा, जस्ट से इट्स ऑलरेडी हैपन। Many people ask me when it will happen, when it will happen, when it will happen, वो डिले होता जाता है। So someday you have to say, oh, it's already happened. So never talk in future tense, it will happen। मैं आता हूँ, कोई बोलते ना ठीक है मैं प्लान करता हूँ, देखते हैं कब आना होता है। कोई कहते ना ठीक है किसी दिन मैं आऊँगा, समझ लो इसके चांसेस बहुत कम है। कोई कहता है डोंट वरी मैं आता हूँ,
समझ लो यहाँ पे चांसेस बढ़ गए. तो ऑलवेज मैनिफेस्ट इन either it's already happened or is happening. Similarly for the pain also. मेरी डिजीज कम हो रही है और कम हो रही है, पेन कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है. आपको ऐसे मैनिफेस्ट करना है. कभी भी ये नहीं बोल रहा है मेरे पेन है, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है. वो पेन बढ़ने लग जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि पेन ऑलरेडी मैनिफेस्टेड है आपके लिए. तो आप बोलिए पेन कम हो रहा है, क्योंकि कम हो रहा है भी मैनिफेस्टेड है. तो पेन इसके पहले कम हो जाए, बोलो कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है. अभी चला गया, पूरा चला गया, बिकॉज वो भी ऑलरेडी मैनिफेस्टेड है. तो मैनिफेस्टेशन सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज में ही नहीं होता है, इवन योर पेन, योर स्टेट, योर वाइब्रेशन, सब में होता है. ओ मेरी थर्ड आई ओपन नहीं है, ओ मेरी थर्ड आई ओपन नहीं है, ओ मेरी थर्ड आई ओपन नहीं है. ओके ग्रेट, आपने ये मैनिफेस्ट किया हुआ है, तो और डिले हो जाएगा वो. तो डोंट इंसिस्ट, डोंट रजिस्ट, और वेटिंग को बिल्कुल मत करो. व्हेन इट लैप सरेंडर कर दो, लेट डिवाइन स्टार्ट मूविंग द थिंग. आई गिव वन एग्जांपल. से फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला, मैं हायर सेल्फ हूँ, मैंने आपको बोला अच्छा बताइए आपको मार्केट से क्या क्या लेके आना है. अब आपकी लिस्ट ही कंप्लीट नहीं हो रही, आप फ्रीज ही नहीं कर रहे उसको. अच्छा ठीक है वो ला देना. फिर मैं जाने के लिए बाहर निकलता हूँ, बोलते नहीं नहीं वो ला देना. फिर बोलते एक मिनट रुको, ये ला देना, नहीं ये नहीं वो ला देना. तो आप कंफ्यूजिंग स्टेट में हो. तो मैं अभी भी कुछ एक्शन नहीं ले रहा हूँ उस पर. मैं एक्शन जब लूंगा जब बोले कि मेरे को ये तो पक्का चाहिए, पहले ये लेके आ जाओ, बाद में देखते हैं. देन आई कैन स्ट्रेट गो एंड गेट द थिंग्स डन. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए. मैनिफेस्टेशन करते हो, हैव क्लियरिटी इन माइंड, डोंट हैव एनी डाउट. क्योंकि अगर डाउट है इट टेक्स टाइम. क्लियर? सो एनी क्वेश्चन सो फार? Before we start the meditation, if no question, then just think any one wish. Now clean the whiteboard. Take 3 deep breaths. ऐसे मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है, मैं प्रेम हूँ. बोलिए आई एम ए ग्रेट मैनिफेस्टर. पता नहीं आजकल क्यों जो भी मैं मैनिफेस्ट करता हूँ तुरंत हो जाता है. पता नहीं आजकल जो भी मैं मैनिफेस्ट करती हूँ तुरंत हो जाता है. अब आप इस चीज को बनाइए. So it has like, yes, it was not happening earlier, but now it started happening. पता ही नहीं, ऑल सडन जो भी मैं मैनिफेस्ट करता हूँ हो जाता है. So you have surprising factor in this. So you are telling your higher self, even like you say something else, but you love surprises. पता नहीं क्यों अचानक से जो भी मैनिफेस्ट करती हूँ या करता हूँ हो जाता है. Now say, now you tell your wish. I want whatever you want. Tell. Now
Bring in your visualization a white color big heart. And see this white color. If there is any doubts or belief, clean it off. So here you are telling your higher self, if there is any gray color energy or any doubt, कोई भी मेरी निराशा है या कोई भी डाउट है या कोई भी ऐसी चीज है, तो उन सबको मैं हटाता हूँ। तो वाइट 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 इट ऑफ। पूरा ऐसा हाथ से एक डस्टर होल्ड कीजिए, इस वाइट हार्ट को पूरा क्लीन कर दीजिए। नाउ यू सी योर ब्राइट शाइनिंग हार्ट, पूरा लव एंड लाइट से फिल्ड। अब इस हार्ट को पूरा अपने हाथ को ऐसे घुमाते हुए लव एंड लाइट से फिल कर दीजिए। नाउ विजुलाइज whatever your wish is there, it appears there। जैसे आपको जो भी चीज चाहिए उसको वहां पे अपीयर कीजिए, दैट यू आर ओनिंग इट। नाउ यू शो योर फीलिंग्स, हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर रिसीविंग दिस। सो वॉट एवर यू वॉन्ट, आपको कितना खुशी देने वाला है, शो टू योर हायर सेल्फ। क्योंकि अगर आप थोड़ी भी खुशी दिखाओगे तो आपके हायर सेल्फ उसको ऑल मल्टीफोल्ड कर देंगे। ठीक वैसे ही कोई नेगेटिव सोचोगे यहाँ पे तो और नेगेटिव भी मल्टीफोल्ड कर देंगे। इसलिए आप अपनी खुशी को दिखाइए सिर्फ कि यस। नाउ इफ यू फील समथिंग इज मिसिंग इन योर manifestation, feel free to add, because that is what you are drawing. If you are comfortable in drawing, you can draw whatever you want also there. If you need a house, some design, you can try to draw it. So your head self get an idea what kind of things you are manifesting. And don't worry, your head self always give better than what you manifest. So don't worry. Now show your excitement after receiving your excitement, then pay the gratitude to your higher self, to universe, to God, to source, whatever you name it. But it is always your soul only. Now thank you universe for giving me this. I'm very happy. Show that happiness now. और बोलिए थैंक यू हायर सेल्फ, मैंने जो सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा आपने मेरे लिए कर दिया है। जो आपने किया है वो मेरे लिए इमेजिनेशन से भी बिल्कुल बियॉन्ड था। तो थैंक यू हायर सेल्फ, दैट्स अ मिरेकल। Very happy I am. Show that happiness. Now see yourself dancing after receiving this, telling everyone,
and say people are also happy. अगर आपका कोई बिलीफ है कि मेरे पास कोई चीज आती है लोग हैप्पी नहीं होते हैं, तो वो बिलीफ को इसी वक्त रिलीज कर दीजिए. शो योर हैप्पीनेस टू योर हायर सेल्फ. नाउ whenever you think about this manifestation, always think in this vibration, whatever you are in now. जो भी वाइब्रेशन इस समय आपको फील कर रही है, इस वाइब्रेशन को आप हमेशा इसी वाइब्रेशन में फिजिकल वर्ल्ड में आफ्टर दिस मेडिटेशन यू हैव टू एक्ट की ऑलरेडी हो चुका है. एंड somebody आस्क, हमेशा इसी से आप कीजिए. इस सेम एज लाइक आप एक शॉपकीपर हैं और आपने बहुत सारे आर्टिकल आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, और कोई बोलता है आपके पास ये है, तो ये मत देखिए आपकी शॉप में क्या है, ये बताइए कि यस ऑलरेडी डिलीवर्ड, मैं दे देता हूँ आपको. यस, मेरे को ये चीज़ रिसीव हो चुकी है. तो जस्ट सी, ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है. अब ये जो आपका वाइट हार्ट है, उसके ऊपर जो भी आपने विजुलाइज किया है, इसको आप सरेंडर कर दीजिए अपने हायर सेल्फ को. दोनों हाथों से इस हार्ट को उठाइए with your manifestation and over to your higher self, and उनको बार बार थैंक्स बोलिए. नाउ जस्ट सी योर हायर सेल्फ इज क्रिस्टलाइजिंग विद द हैंड जो भी आपने उनको दिया है, एंड इज मेकिंग इट, वो पूरा आपके फिजिकल रियलिटी में उन्होंने आपको दिया है. नाउ यू सी ही इज एंडिंग ओवर टू यू, पूरा क्रिस्टलाइज करके फिजिकल रियलिटी में जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, विजुलाइज किया है, आपको वो हैंड ओवर कर देते हैं. And B, the vibration you already received it is there in the physical reality. Now you say thanks to your higher self, to universe, to everyone who is involved in this process. Now here onwards you treat, you already received it. And just say, oh, that was very quick. Now imagine the same thing in your house or in surrounding, you have those manifestation with you. Now you come to the physical real world and see those things are already with you. वैसा ही वाइब्रेशन में अब आपको रहना है. रेस्ट योर हाई सेल्फ विल टेक केयर, वो पूरा देख लेते हैं. नाउ स्लोली bring your awareness to your body, move your body, rub your hand. ओके और अपने दोनों हाथों में वो गिफ्ट जो भी आपने लिया है उसको लीजिए, उसको हार्ट से अपने ऐसा लगा लीजिए, यू ऑलरेडी रिसीव्ड इट. हायर सेल्फ को थैंक्स कीजिए और मेडिटेशन से अपन बाहर आ सकते हो, आप आइज को ओपन कर सकते हैं. सो एक्नॉलेज द नंबर वन इज एक्नॉलेज करो कि यस थैंक यू हायर सेल्फ, जो भी मैं मैनिफेस्ट करता हूँ करती हूँ आप मुझे देते हैं, सो थैंक यू फॉर दैट. आई एम वेरी हैप्पी जो भी आपने अभी तक मुझे दिया है. उसके बाद में जो भी आपकी पोजीशन है इस समय उसको एक्सेप्ट कीजिए कि यस ये मेरे बिलीफ से ऐसे हैं, और फिर उसके बाद में आप जो क्रिएट करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, उसको विजुलाइज कीजिए, फील कीजिए, उसके सारे बिलीफ्स को हटा के वाइट बोर्ड को आप इमेजिन कीजिए,
उसमें से सारे जो भी डाउट्स हैं आपके वो सारे क्लीन कर दीजिए, पूरी एनर्जी शाइनिंग हार्ट है। उसके बाद आप विजुलाइज कीजिए, विजुलाइज करने के बाद आप उसको मिलने के बाद कैसा फील कर रहे हैं उस वाइब्रेशन में आइए, वैसा रिएक्ट कीजिए। इफ़ यू फील डांसिंग डांस करो, गाने गाने या जंप करना है करिए। एंड उसके बाद अपने हायर सेल्फ को थैंक यू बोलिए, ताकि ये सब भी मैनिफेस्ट हो। फिर हायर सेल्फ को सरेंडर कीजिए, हायर सेल्फ उसको क्रिस्टलाइज करते हैं, आपको वापस से सारी चीज़ आपको गिफ्ट रैप करके आपको देते हैं। उसको आप ओपन करिए एंड एंजॉय वॉट एवर यू मैनिफेस्टेड इज अपीयरिंग। फिर डिवाइन, जब भी उसका डिवाइन टाइम आता है, हायर सेल्फ विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। सरेंडर करो, नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन ये ऑलरेडी मिल गया है समझो, नेक्स्ट पे मूव हो जाए। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन सो फार? किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। Okay, can I ask first question? यस। Okay. So manifestation में you can do manifestation for yourself only or you can do manifestation for your family members. नहीं Like something you want for them to happen. नहीं, आप उनके लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन उनको भी अलाइन होना है। जैसे आप सब ये कर सकते हो कि उनकी लाइफ में ये हो जाए, लेकिन उनको भी रेजोनेट करना पड़ेगा, उस वाइब्रेशन से मैच करना पड़ेगा। जैसे आपने अपने लिए भी मैनिफेस्ट किया, अगर उसमें आप वाइब्रेट नहीं करते हो तो मैनिफेस्टेशन वो वैसे भी वर्कआउट नहीं होता है फिर। तो अगर आप उनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी वाइब्रेट करना है, उनको भी इंटरेस्ट होना चाहिए उनकी लाइफ के लिए। हाँ मतलब जो उनका इंटरेस्ट है पर वो अगर हो नहीं रहा है उसके लिए अगर हम मैनिफेस्ट करते हैं तो दैट इज हाँ अलाइनिंग राइट। हाँ, वहां पे अगर उनका अलाइनिंग है तो फिर यस, यू कैन गिव अ ट्राई। बट जैसे बोलते हैं ना, उनका फ्री विल, आजकल पता है इंसान ऐसे होते हैं जो अंदर सोचते कुछ है बोलते कुछ है, राइट? तो हाँ उनको नहीं पर फैमिली मेंबर्स का तो पता होता है कि व्हाट दे वांट बट अगर वो काम नहीं हो रहा है उनका तो यू कैन हेल्प देम आउट यू कैन मैनिफेस्ट फॉर देम राइट। नहीं, फैमिली मेंबर में ज्यादा होता है, अंदर कुछ बाहर कुछ। नहीं नहीं फैमिली का मतलब ये है कि जैसे अपने खुद के बच्चे हैं राइट उनका तो पता ही होता है। बस उनको ये बोलना है इसी वाइब्रेशन में रहना है, उनको बोलो कि मैं तुम्हारे लिए मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तुम्हें इस वाइब्रेशन में रहना है। और अगर वो बच्चे वैसे भी अगर 18 ईयर्स हैं तो दे आर वेरी गुड इन मैनिफेस्टेशन, वो तो हमसे भी ज्यादा है, उनके कोई बिलीफ्स ही नहीं है। उनको जो चाहिए फटाक से वो करते हैं, इधर अपीयर हो जाता है। वो हमसे बड़े मैनिफेस्टर हैं, क्योंकि उनकी काफी लोगों की जो थर्ड आई ऑलरेडी ओपन है, इतनी ज्यादा ब्लॉक नहीं है उनकी। तो आप हम्म कर सकते हैं, उनको अलाइन कीजिए कि यस आई एम थिंकिंग ये। और जैसे आप बच्चों को बता देते हो तुम्हारे लिए ये लेके आने वाले हैं, तो उनका तो मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट हो जाता है। हम्म फिर उसके बाद तो आपको दिलाना ही पड़ता है तुरंत। और ज्यादातर बच्चे मैनिफेस्ट करते हैं पेरेंट्स से ही, पापा मम्मी दिला दें, पेरेंट्स दिला दें। तो आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं उनके लिए मैनिफेस्ट, बट अगेन एज आई सेड ना, दे शुड हैव अ नीड ऑफ दैट। यस यस तो जब उनका नीड होता है तो वो अपीयर हो जाता है। और इफ यस इफ यू गो विद द फ्लो, देन ऑलरेडी यू मैनिफेस्टेड द बेस्ट लाइफ ऑन अर्थ। हम्म जैसे जो मोड में मैं रहता हूँ ना, मैं मैनिफेस्ट, मुझे पता है हर सेल्फ ने जो मैनिफेस्ट किया है वो सबसे बेस्ट है, तो मैं उसको एंजॉय करता हूँ। आई प्रिफर टू गो विद द फ्लो देन द अदर थिंग, क्योंकि उसमें मेरे बहुत सारे चीजें अपेयर होती है, बहुत सारी क्लीनिंग के लिए आती है, तो आई एंजॉय मोर दैट। yeah I okay यप। thank you yeah I think I need to drop thanks ओके, नो प्रॉब्लम। thank एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? And you have to take a physical action always.
फिजिकल एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो मुझे ये चीज चाहिए तो उसके लिए आपको बढ़ना भी पड़ेगा। लाइक इफ यू वांट आई शुड बिकम अ डॉक्टर, देन यू हैव टू फिल अ फॉर्म आल्सो फिजिकल एक्शन, यू हैव टू चूज बी इन द सेम वाइब्रेशन। तो आपके जो एक्शन है फिजिकल एक्शन, वो जितना ज़्यादा आप लोगे उतना ही ज़्यादा वो मैनिफेस्टेशन फास्ट होता है। एंड बी रेडी टू रिसीव द मिरेकल्स, हमेशा मिरेकल्स को इंक्लूड करो, सरप्राइजिंग फैक्टर्स को इंक्लूड करो, वो और जल्दी होता है। एनी अदर क्वेश्चन? वैशाली जी, रामाकृष्णा जी, पूनम जी। I have one question. यस। Let's say, I mean, right now, some kids don't want to get married. Now, if you're like, oh, I want them to get married and I want them to go higher education. So we can manifest that, like by being in that vibration. We are hoping that they might catch it and they might change their mind and do it, right? How does the manifestation work here? That's what I want, and I want to manifest for my kids, but वांट, I देखो, वांट और नीड, वांट और नीड, अगर आप उनके लिए वो नीड है कि उनके साथ वो होना है, व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू नीड, दे नीड, अगर वो पूरा लाइन होता है तो वो हो जाता है। लेकिन अगर ये सिर्फ आपकी वांट है, उसकी आपको जरूरत नहीं है, या उनका जो लाइफ पर्पस है उसके बीच में अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो फिर वो मैनिफेस्टेशन होगा, बट योर हायर सेल्फ विल डिसाइड द टाइमिंग। क्योंकि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, यू कंप्लीट योर लेसन्स ऑन अर्थ। तो उसमें जैसे आपने बोला कि मेरे को जाके पर्टिकुलर प्लेस पे मुझे ये खाना है, तो वो प्लेस पे पहुंचने में अगर टाइम है, या वो भी आपकी इमीडिएटली नीड नहीं है और वांट है, तो फिर आपके हेल्थ उसको थोड़ा डिवाइन टाइम के लिए शेड्यूल करते हैं। तो आप जब आपकी वांट नीड बन जाती है, वो आप देखते हो कि वो चीज़ अपीयर हो रही है। तो आप बोलते हो कि बच्चों का ऐसा ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो उनके जो लेसन इन बिटवीन वो पहले कंप्लीट कराए जाएंगे। जैसे आपने बोला कि मेरे बच्चों की जॉब लग जाए, लेकिन उसके पहले आपके बच्चों को कुछ बिलीफ है जहाँ पर उनको जॉब वेटिंग और प्रोसेस भी उनको एक्सपीरियंस करना है, वहाँ से कुछ लर्न करना है। तो आप तो मैनिफेस्ट करके छोड़ दीजिए, बच्चे वो प्रोसेस के अंदर जाएंगे वो, और उनके जो भी लेसन है वो वहाँ पे लर्न करेंगे। कंट्रोल कभी भी नहीं करना है। So किसी unless they need it, it's not going to happen whether I want it or not. इफ यू नीड, देखो, अगर बच्चों को मान लो कार की जरूरत है और आपकी भी वांट है ये बच्चों के पास कार हो, तो ये ऑलरेडी अलाइन हो चुके हैं आप, आपको लगता है कि यस उनको जरूरत है इसकी, देन इट हैपन्स वेरी फास्ट। तो अगर आपने सोच लिया बच्चों का मैरिज करना है, उनको भी उन्होंने सोच लिया हमें मैरिज करना है, फिर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, सेल्फ को कर दो, वो अपने आप जो भी सही मैच है वो सब अपने आप मूव करना शुरू कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना, जिनके नहीं हो रहे होते उनके कई सारे बिलीफ्स होते हैं पास्ट लाइफ से। जैसे किसी ने बिलीफ डाला हुआ है, नहीं मुझे तो मैरिज करना ही नहीं है, अब वो पास्ट लाइफ में उन्होंने एक बिलीफ डाला हुआ है, अब यहाँ बोल रहे हैं मुझे करनी है, वहां पे उन्होंने कोई रीजन से उन्होंने बोला है। तो जब तक वो रीजन उनके पास्ट लाइफ का नहीं मालूम पड़ेगा, वो बीच में आता रहेगा। क्योंकि कई बार रियलाइजेशन भी होता है, कई बार इस बीच में आपका कोई लेसन भी होता है। तो अगर लेसन होता है तो फिर हायर सेल्फ उसको ट्रिगर करते हैं, या आपने मैनिफेस्ट किया है तो आपको उन लोगों से मिलाते हैं जो आपकी वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, कौन से ब्लॉकेज हैं उनको वो हायर सेल्फ रिवील करते हैं। वो मे बी एंजल नंबर, स्टोरी, मूवीज, कोई हीलर, किसी से आपको मिलवाएंगे उस पीरियड में। तो वो जो भी इन बिटवीन के प्रोसेस है ना, क्लीनिंग है, उसमें आपको डाल देते हैं वो।
बहुत सारे बच्चों की अभी शादी नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत सारे दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज, क्योंकि वो चूज करके आए हमें शादी नहीं करना है, या सिचुएशनशिप, बहुत सारी अलग अलग रिलेशनशिप है जिसपे उनको रहना है, किसी को लिव इन में रहना है। तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी ये लोग चूज करके आए हैं। तो हो सकता है पेरेंट्स के लिए आने वाले टाइम में थोड़ा सा हार्ड हो मैरिज के लिए बच्चों को कन्विंस करना, क्योंकि पहले से बहुत कुछ मैनिफेस्ट करके आए हूँ लाइफ में। तो आप मालूम कर सकते हैं कि व्हाट इट इज, कहाँ पे ब्लॉकेज है। हेलो सर। यस। हाँ सर, बहुत अच्छा ध्यान हुआ है बहुत, और मुझे बहुत सारी गाइडेंस आई है सर। जो मैंने कभी क्वेश्चन किया था अपने हायर सेल्फ से, तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं, हम्म। और मुझे वो दृश्य दिखाया जा रहा है जो आगे होने वाला है सर, जिसके लिए मुझे तैयार किया जा रहा है सर। तो वही सब दिख रहा है और अभी भी चल रहा है, तो मैंने आपसे बात करने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लिया है, तो मैं इसके आगे भी कंटिन्यू कर पाती हूँ सर। ठीक है, आप पहले ऐसा था कि बताइए। ध्यान से रहना। आप शेयर जी। कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं क्या एग्जैक्टली exactly क्या है आपने जो किया है, इफ यू फील फ्री, अगर आपको लगता है शेयर। सर जैसे कि मैं चाहती थी सर कि एक मेडिटेशन सेंटर बने, और वहाँ पे एक आश्रम भी हो जहाँ जो भी लोग रहना चाहते हैं वो रह पाए। तो वही सब मुझे पूरा दिखाया जा रहा था सर, कि कैसा कहाँ पे क्या चीज होगी, और आगे जो भी डिवाइन हमसे जुड़ने वाले हैं सर, तो उनसे पहचान कराई जा रही थी सर मेरी, कि अभी आगे और भी थर्ड आई मास्टर जुड़ने वाले हैं आगे हमारे साथ, तो इस काम में और भी हेल्प होगी हमें सर। वेरी गुड। तो ऐसे ही डिवाइन बहुत सारे ग्रेट मास्टर्स दिख रहे थे सर, जो आते जा रहे हैं, और आपको भी दिल से धन्यवाद दे रहे हैं सर, कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम भी अब सेवा के लिए आ रहे हैं आपके साथ। तो हम बहुत खुश हैं, और आज जो लोग आने वाले हैं सर, उनके बारे में भी मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है सर, शॉर्टकट में दी गई है अभी तो वो आएंगे तो उसके बाद पूरा फिर मैं बता पाऊंगी उन्हें। वेरी गुड। तो यही सब चल रहा है सर, अभी भी वही सब दिख रहा है मुझे, लेकिन मैंने सोचा पहले आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ मैं, वेरी गुड। तो उन्हें ऑसम। आप लोगों को बताया सर, यस। सो थैंक यू। और आगे करती हूँ सर। यस। जी। यस। यस, इट हैपेंस। होता है वो, जो आपने हम्म। सोचा है वो होता है, यस सर। जल्दी होता है। यस। थैंक यू पूनम जी, शेयर करने के लिए। जी सर। एनी अदर थिंग, किस वेलकम। कोई भी कुछ बोलना चाहता है बिफोर बिफोर वी वाइंड अप? वैशाली जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कुछ गुड मॉर्निंग दीदी। कुछ मैनिफेस्ट कर लिया? सर जी, हम लोग जो बिल्डिंग में रहते हैं ना सर, वो रिडेवलपमेंट हो ही नहीं रही है बहुत दिनों से। सब सोचते हैं कि होना चाहिए होना चाहिए। तो मैंने ये मैनिफेस्ट किया कि ये बन गया है, एंड न्यू बिल्डिंग बना है। हाँ, तो आप करिए, मैंने पता नहीं अचानक से कैसे सब कुछ सही हो गया और सब एकदम से पूरा बिल्डिंग तैयार हो गया। आई एम सरप्राइज, थैंक यू वेरी जी मच। तो एक्चुअली ये सर बहुत मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत। ग्रैटिट्यूड। जी। और एक वो ऐसे भाव आता है सर आपके लिए, इतना धन्यवाद, इतना थैंक यू, आपको जितना थैंक यू बोलो वो कम है। ऐसे अंदर से फीलिंग आती है सर, जो आप नॉलेज देते हैं हमको इसलिए। यस। मैं तो चाहता थैंक हूँ यू आप सर। एक हेवन से भी कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल आप लाइफ अपने लिए मैनिफेस्ट करें। So thank you for believing. Thank you for experimenting on this. Thank you for practicing on it. Thank you for mastering on it. तो आपको प्रैक्टिस करना है, मास्टर करना है, क्योंकि ये सब वर्कआउट होता है।
जैसे आप बिलीव करने लगते हैं, ये सारी चीजें अपने आप होने लगती है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये वो नॉलेज है जो मतलब जो अलाइन है कैसे फिजिकल रियलिटी काम करती है। सो थैंक यू वैशाली जी। थैंक यू सर। या रामाकृष्णा जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप? Nice, sir. Everything is very fine. Excellent. We'll catch up in the next session. Yes. Aparna Okay. is on the line. Okay. Yep. Hope see you guys soon by 20th here in Hyderabad. Welcome back. Yeah. So today we are finalizing something here. Chalo. We'll see you again tomorrow. Okay. Okay, bye. Thank you. Welcome.